Okay, so we have done with the concept of pH. We move further and now we talk about a concept called as hydrolysis. Okay, we call about what? Hydrolysis. अब हाइड्रोलिसिस दोस्तों होता क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, एंड दैट इज, शुरू करेंगे बेसिक से कि जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं दोस्तों, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन इज नॉट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोक्साइड आयन. Okay, it's equal to concentration of hydroxide ions in a pure water. Okay, and that is equal to 10 to minus 7. Okay, once again I repeat. Okay, I rectify my earlier statement. वापस से बोलता हूँ कि जब हम pure water consider करेंगे दोस्तों, तो the concentration of a hydronium ion is always equal to the concentration of hydroxide ions. ठीक है, लेकिन जब क्या होगा, when the ions of the salt reacts with water, okay, then what will happen is the concentration of a hydronium ion will not be equal to the concentration of OH minus ions. Ions of the salt, देखिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, every salt is made up of a cation as well as an anion, ये याद रखिएगा. तो इसमें से cation या anion इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके वजह से ये दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा. ओके, इट विल नॉट बी इक्वल. और जब H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हुआ तो फिर हम इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन कैन बी आइदर एसिडिक और इट कैन बी बेसिक. अगर देखो ये दो पॉसिबिलिटी है ना दोस्तों, यहाँ पर या तो H3O प्लस OH माइनस से ज्यादा है तो सोल्यूशन इज एसिडिक, या तो OH माइनस आयंस H3O प्लस से ज्यादा है यानी सोल्यूशन इज व्हाट, बेसिक. मैंने अभी आपको पीएच के रेंज में बताया था ये सारी बात. ओके, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी प्योर वाटर होता है हम उसे न्यूट्रल बोलते हैं, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर सेम, इक्वल. बट व्हेन द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर, then the solution is no more neutral. It can be either acidic or basic, or only under one particular condition it might be neutral, only in one particular condition. अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा. Okay, so what is hydrolysis is all about? तो ये मैं बताना चाहता हूँ अभी आपको कि it is a reaction in which either the cation or anion or both of the salt reacts with water, okay, to produce either a acidic or a basic solution, sometimes neutral solution. Okay, there is a special case for this. वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अंडर दिस कैटेगरी इन द later part of this chapter. So once again I repeat, what is hydrolysis is? It's a reaction in which the cation or anion or both of the salt reacts with water, resulting in the formation of a acidic or a basic solution and sometimes a neutral solution. Okay, and let us consider a salt that is Ba. ये सॉल्ट कंसीडर करेंगे, मतलब B प्लस एंड A माइनस प्लस H2O. It is going to give you what? Ha plus BOH. Salt plus water is going to give you an acid as well as base. फिर हम देखेंगे कि whether the acid is stronger or base is stronger or both is stronger or both of them are weaker, and accordingly we decide whether the solution is acidic or basic. लेकिन ये एक जनरल रिएक्शन है किसका, हाइड्रोलिसिस का, कि the salt plus water gives you an acid and gives you a base. Okay, this is the general reaction with respect to what? Hydrolysis. Okay, तो ये हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन.
कि what do you mean by hydrolysis? Pure water concentrations are equal, लेकिन जब एक salt को डाल दिया जाता है water में तो फिर the concentration of hydronium ion and OH minus ions differs. अब कौन सा concentration ज़्यादा है उसके हिसाब से वो solution या तो acidic बन जाएगा या तो वो solution basic बन जाएगा, rarely कभी वो neutral रहेगा. Okay, and this particular reaction is called as what? Hydrolysis reaction. बोलो सबको समझ में आया? Has everybody understood what is hydrolysis all about? Yes, this is only the introduction, my dear friends. Okay, आगे मैं आपका types of salts, उसका derivation, बहुत simple derivation है, tension मत लीजिएगा. Okay, that I am going to consider with you. All right? Okay, अब एक बार हमें hydrolysis क्या है वो पता चल गया. Salt होना ज़रूरी है, reaction of salt and water, and it gives you an acid and base. यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि in presence of water, every salt is made up of acid as well as base. मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ कि acids are of two categories, strong acid, weak acid. The base is also of two categories, strong base as well as weak base. और इस तरीके से दोस्तों we got total 4 types of salts जिसका रिएक्शन हम वाटर के साथ देखेंगे अंडर अ हेडिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस. सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. Okay, so the first type is it's a salt of strong acid and a strong base. Okay, second category is strong acid and a weak base. Third category is weak acid and a strong base. और fourth category तो आपको समझ में आ ही गया होगा, weak acid and a weak base. Okay, तो दोनों strong है, फिर एक strong एक weak और दोनों weak. तो इस तरीके से we got 4 categories of salts. And we are going to now consider every category with respect to its hydrolysis reaction. Okay, so शुरू करते सबसे पहले the first category, and that is about strong acid as well as strong base. Okay, वो वाला category हम लोग consider करेंगे. तो मैं आपको examples explain कर दूंगा तो it becomes very clear to you. The example is NaCl. Okay, अभी NaCl is a salt of HCl and NaOH. Okay, ये याद रखिएगा. कैसे पता करना है वो भी बता देता हूँ. See, NaCl is made up of what? उसका अगर डिसोसिएशन हम लोग करें तो क्या मिलेगा हमें Na plus as well as Cl minus. वाटर का डिसोसिएशन किया जाए तो आपको पता है क्या मिलता है, H plus and OH minus ions. तो H plus इसके साथ जाएगा Cl minus के साथ, तो और क्या देगा HCl, और OH minus Na plus के साथ जाएगा और क्या देगा NaOH. Okay, that is the way you have to do it. Okay, तो पहले salt का dissociation करो, because every salt is made up of cation as well as anion. Cation will combine with OH minus, and the anion of the salt combines with the H plus ions. Okay, and thereby you get the corresponding acid as well as base. Next thing is HCl. मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ ये strong acid है, और NaOH आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ it is a strong base. Okay, अब देखिए रिएक्शन दे. मैंने आपको रिएक्शन पहले लिख के दिया है. What is the hydrolysis reaction is NaCl plus water. It gives you what? Acid as well as base. That means it is HCl as well as NaOH. अब दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जहां तक सॉल्ट का सवाल है, सॉल्ट किसी भी कॉम्बिनेशन का बना हो, any of these 4, the salt is a strong electrolyte. Every salt is a strong electrolyte, and therefore it will dissociate, and therefore dissociates into cations as well as anions. Okay, this is what it is going to have. So now, how are we going to sort of with? ये है Na plus Cl minus
वाटर का डिसोसिएशन इज वेरी पुअर, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहने दो। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा फिक्स है। सॉल्ट प्लस वाटर ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का लेफ्ट हैंड साइड का। तो सॉल्ट विल गिव यू कटायन एंड एनायन एंड H2O, कीप इट एज H2O ओनली। उसका डिसोसिएशन मत दिखाइए, क्योंकि अगर उसका भी डिसोसिएशन दिखाए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल। जब सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है तो वाटर का भी डिसोसिएशन हो जाता है, नहीं वो गलत है। इसलिए वाटर को एज इट इज रखो, सॉल्ट का डिसोसिएशन दिखाओ, एंड देयरफॉर वी से दैट सॉल्ट इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर्ड टू वाटर। और या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर्ड टू द सॉल्ट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया, ये फिक्स रहेगा। फिर चाहे वो कैटेगरी 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये बात क्लियर हुआ। मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में वी गॉट HCl एज वेल एज NaOH। अभी दोनों स्ट्रांग है, okay, both of them are what? Strong, and you know very well whenever we talk about a strong electrolyte it will undergo complete dissociation। तो इसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? H plus plus Cl minus plus Na plus plus OH minus, ये मिलेगा। Okay, because both of them are strong, that's why। अभी cancelling the common ions which are there on both the sides, so Na plus और Na plus cancel होगा, Cl minus as well as Cl minus cancel होगा। तो cancellation के बाद हमें जो मिलता है that is what? H2O giving you H plus as well as OH minus ions। Okay, इसका मतलब ये हो गया कि therefore the concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus। जितना कॉन्सेंट्रेशन H plus का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन OH minus का है। और मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं पहले कि जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, जो प्योर वाटर में भी था अगर आपको याद है, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी व्हाट? न्यूट्रल। ओके, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? न्यूट्रल। और दोस्तों मैंने डेफिनेशन में बता दिया था कि हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है कि जहां पर सॉल्ट ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एंड इट इज गोइंग टू गिव यू आइदर एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन। Sometimes it is a neutral solution, that is a different case that we'll be discussing later on। लेकिन most of the time it is going to be an acidic as well as a basic solution। अब यहाँ पे तो क्या neutral solution है, and therefore फिर क्या लिखने का कि the salt of strong acid and a strong base does not undergo hydrolysis। Okay, ये statement याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सोल्यूशन इज व्हाट? न्यूट्रल। एक केस है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। फिलहाल वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग यही देखने वाले हैं कि हाइड्रोलिसिस मतलब या तो एसिडिक होना चाहिए या तो बेसिक होना चाहिए। ये न्यूट्रल है, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। यानी क्वेश्चन आता है ऐसा दोस्तों, ओके, कि द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। Okay, this is the way you have to explain। Give an example of a salt, वो कौन से एसिड और बेस का बना हुआ है वो जिक्र कीजिए, उसका डिसोसिएशन जिक्र कीजिएगा कि Na plus और Cl minus है, फिर वो हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन लिखो, कॉमन आयंस कैंसिल करो तो ये मिलता है, फिर लिखना है आपको कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और क्योंकि सॉल्यूशन इज न्यूट्रल यानी हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं है, किसका? ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब सबको समझ में आया? एवरीबॉडी ओके। सो फर्स्ट कैटेगरी इज डन, वी गो इनटू द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी दोस्तों कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक बेस। एग्जांपल लेते हैं मैं सॉल्ट का है, एंड दैट इज कॉपर सल्फेट। अब याद है मैंने आपको एक तरीका बताया था, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस देगा। ओके, अभी SO4 का वैलेंसी है -2, कॉपर का वैलेंसी है +2। ओके, अभी प्लस है कॉपर तो वो OH के साथ जाएगा, और लेकिन 2 OH के साथ जाएगा क्योंकि वैलेंसी इज 2। उसी प्रकार से SO4 का वैलेंसी 2 है यानी वो 2 H के साथ जाएगा। एंड इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ सॉल्ट ऑफ CuOH twice and H2SO4। ओके, अब दोस्तों CuOH twice is a weak base and H2SO4 is a strong acid। ठीक है, एक वीक बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी
When you talk about CuSO4, उसका जो dissociation है, that is going to give you copper 2 plus and SO4 2 minus. Okay, that is what the dissociation is taking place of CuSO4 alone. Cu2 plus plus SO4 2 minus. लेकिन जब हम एक रिएक्शन के तौर पे लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन के तौर पे, so CuSO4 plus H2O giving you CuOH twice plus H2SO4. Okay, अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए we need to make it as 2H2. I guess the reaction is balanced. Okay, 2H2OH, so this is 2H and 2H is 4H, 2 oxygen, alright, and 2 oxygen. So reaction is balanced. अब दोस्तों we begin with, मैंने आपको क्या बोला था याद है ना, कि हमेशा सॉल्ट कोई भी हो वो डिसोसिएट होगा, तो Cu2 plus SO4 2 minus, वाटर का डिसोसिएशन नहीं होगा. अब CuOH twice is a weak base and H2SO4 is a strong acid. अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी दोनों के अंतर क्या होगा फिर, वीक बेस है इट विल अंडरगो डिसोसिएशन स्लोली, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इट विल अंडरगो डिसोसिएशन वेरी फास्ट. तो अगर ये साबित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर इसका डिसोसिएशन मैंने दिखाया तो इसका नहीं दिखा सकता हूं मैं, क्योंकि अगर इसका भी डिसोसिएशन दिखाया, इसका भी डिसोसिएशन दिखाया, दोनों का दिखाया, तो इट मींस बोथ ऑफ देम हैव द सेम स्ट्रेंथ, जो गलत है. ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है. तो जितने टाइम में, समझो मैं एग्जांपल देता हूं, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिचुएशन है कि 5 मिनट लगता है H2SO4 को डिसोसिएट होने के लिए, तो उतने 5 मिनट में CuOH twice का डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी वो remains as CuOH twice only, and this will undergo dissociation to give you 2H plus plus SO4 2 minus. थोड़ी देर के बाद इसका डिसोसिएशन होगा, लेकिन जिस वक्त पे इसका डिसोसिएशन होगा उस वक्त पे इसका नहीं होगा. ये बात याद रखिएगा. So what will happen now? Cancel the common ions. So common ions में सिर्फ SO4 2 minus और SO4 2 minus cancel होगा, और उसके बाद मुझे रिएक्शन मिलेगा Cu2 plus plus 2H2O. It is going to give you CuOH twice plus 2H plus. और ये दोस्तों एक PPT के जैसा बनेगा. ओके, अब देखिए अब दोस्तों यहाँ से the solution contains free H plus ions and therefore the solution is what? Acidic. H plus is responsible for acidity. Okay, यानी salt of strong acid and weak base, वो कैटेगरी चल रहा है, so that is acidic in nature. Okay, अब दूसरी बात, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो एक PPT बनाता है, precipitate, and therefore it forms a turbid solution. तो फिर इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4. देखो यहाँ पर H प्लस आयंस है, बराबर है, इसमें और मैंने H प्लस आयंस डाल दिया, तो क्या होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. तो इसलिए ये ना हो तो रिएक्शन लेफ्ट में शिफ्ट होगा. अब लेफ्ट में शिफ्ट हो गया मतलब ये सॉल्युबल फॉर्म में मिल गया मुझे. ओके, तो ये जो टर्बिड सॉल्यूशन है, धुंधला जैसा सॉल्यूशन है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मुझे उसको क्लियर करने का है. ओके, दे मैं क्या करूंगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 डालूंगा, तो आई गेट अ क्लियर सॉल्यूशन. समझ में आया? बिकॉज एडिशन ऑफ एन एसिड, ऑलरेडी द सॉल्यूशन इज एसिडिक, उसमें मैंने एसिड डाला तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो लीच-अटलियस प्रिंसिपल आपको मालूम है, तो उसके मुताबिक द रिएक्शन विल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू गेट अ क्लियर सॉल्यूशन. दैट इज व्हाट अ क्लियर सॉल्यूशन इज. एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? बेस डालोगे तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बेस इज OH माइनस है, तो इधर कैंसिल किधर होने वाला है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला ही नहीं है. क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? ओके, सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि ये अगर टर्बिड है, मुझे उसका क्लियर करना है उसको, तो मैं थोड़ा सा उसमें एसिड डालूंगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. अंडर विच कैटेगरी? स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक बेस. Solution is going to be what? Acidic. Okay, so salt of weak acid and weak base is what? Acidic, and therefore मैं एक और पॉइंट लिख के रखता हूं, hydrolysis takes place. Okay, hydrolysis will take place
और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, पीपीटी बनने की वजह से यहाँ पर पीपीटी मतलब आपको मालूम है सॉलिड इन फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड, सॉलिड हेवी होता है तो इट सेटल्स डाउन, इसलिए डाउनवर्ड एरो बताने का है। गैस है तो वो हल्का उड़ जाएगा तो वो अपवर्ड एरो, ओके। सो पीपीटी बनेगा तो इसको इससे सोल्यूशन धुंधला हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, तो मुझे उसको क्लियर करने का है। तो जो आयंस ऑलरेडी है वही आयन वापस डालो ताकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, एंड देयरफॉर एसिड डालना है तो यू गेट अ क्लियर सॉल्यूशन। कंसेप्ट इज क्लियर एवरीवन? ग्रेट। Move on to the third category. आपको पता चल ही गया होगा थर्ड कैटेगरी कौन सा है, एंड दैट इज अबाउट वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। एज यूजुअल पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको। द एग्जांपल इज CH3COONH4। ओके, ये एसिडेड आयन है, ओके। उसका डिसोसिएशन मैं आपको बता देता हूं। इट इज CH3CO- एंड आई एम वेरी सॉरी, इट इज नॉट NH4, इट इज Na। ओके, सो it will give you Na+. So CH3CO- and Na+. अब मैंने आपको तरीका बताया है तो उस हिसाब से यू नो वेरी वेल कि CH3CO- H+ के साथ जाएगा और वो बनाएगा CH3COH, और Na+ OH के साथ जाएगा तो it is going to give you NaOH. So CH3CONa is a salt of the weak acid and the strong base. Okay, it's a salt of what? Weak acid and a strong base. वो हमें कंसीडर करने का है। क्लियर अप टू दिस? कौन सा एसिड और कौन सा बेस का एक सॉल्ट बना हुआ ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अभी हम लोग हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कंसीडर करेंगे। हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन वी स्टार्ट ऑफ विद के वी टेक अ सॉल्ट, वी ट्रीट दिस विद वाटर, both of them react with each other to give you the corresponding acid and the corresponding base. ओके, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स यू एसिड एंड बेस। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है, अभी आपको फटाफट आ गया है, मुझे भी आप लोग डिक्टेट कर रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। एवरी सॉल्ट अंडरगोज डिसोसिएशन, वाटर का डिसोसिएशन नहीं होगा, सो दैट इज एज इट इज। अब देखिए CH3COH इज अ वीक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में अंतर है, तो वो अंतर को दिखाने के लिए एक का डिसोसिएशन दिखाना पड़ेगा, दूसरे का नहीं दिखाना पड़ेगा। तो दिस विल टेक अ मोर टाइम, दिस विल टेक अ लेस टाइम, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है, डिसोसिएशन वेरी फास्ट, वीक एसिड डिसोसिएशन वेरी स्लो। तो जितने वक्त में NaOH का डिसोसिएशन हो जाएगा उतने वक्त में ये CH3COH का डिसोसिएशन नहीं होगा। ओके, इसका नाम है एसिडिक एसिड। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। तो इसका मतलब ये एसिडिक एसिड को इसी तरह से लिखो, प्लस Na+ प्लस OH-, ये मिलेगा हमें। ओके, दिस इज व्हाट वी गेट। तो इस तरीके से द सोल्यूशन, अगर हम लोग ये सोडियम एसिडेट की बात करें उसमें कौन सा स्पीशीज मौजूद रहेगा इन एक्वेस मीडियम, तो वो याद रखिएगा। देयर विल बी CH3COH, देयर विल बी Na+, एंड देयर विल बी व्हाट CH3CO- एंड देयर विल बी OH-। ओके, ये इतना याद रखिएगा आप लोग। अभी क्या करना है, नेक्स्ट थिंग व्हाट हैज टू बी डन इज कैंसिल द कॉमन आयंस। तो कॉमन आयंस कैंसिल करेंगे तो Na+ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, CH3CO- प्लस H2O गिविंग यू CH3COH प्लस OH-। ओके, नाउ सिंस द सॉल्यूशन contains free OH-। okay, क्या होना चाहिए, free OH-। therefore the solution is basic, hence the salt of weak acid and strong base is basic, and therefore hydrolysis takes place। क्योंकि हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन तो मालूम है, या तो सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए या तो सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए, एंड देयरफॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होगा। बोलो, समझ में आई आप लोग को? ओके, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब तक हम लोग ने 3 सॉल्ट्स कंसीडर किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों इक्वल अमाउंट है, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, द सॉल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज ऑफ द H+ आयंस।
Next is weak acid and strong base. The solution is basic. Okay, and because of the concentration of OH minus ions which are free. यानी मैं आपको एक यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, and that is कि दो में से अगर कोई भी एक वीक है और दूसरा स्ट्रांग है तो कैसे पता करने का कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. सिंपल बता दूं दोस्तों, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो नेचर होगा. ओके, स्मार्ट हो आप लोग, समझ में आ गया होगा. यानी स्ट्रांग एसिड वीक बेस है तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? एसिड का. सॉल्यूशन इज एसिडिक. वीक एसिड स्ट्रांग बेस है तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? बेस का. सो दैट मींस द सॉल्यूशन इज बेसिक. सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए. दोनों स्ट्रांग है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? न्यूट्रल. ओके, दैट इज NaCl. नमक का इसलिए तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यानी आपको याद रखने में कोई तकलीफ ही ना हो. ओके, तो बताइए दोस्तों, ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गया? एवरीवन, ऑल द 3 कैटेगरी सो फार? यस. चौथा कैटेगरी बाकी है दोस्तों, लेकिन ये तीनों समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है. ओके दोस्तों, सो नाउ वी गो इनटू द 4th कैटेगरी. और वो 4th कैटेगरी कौन सा है? यस, आपको मालूम तो पड़ गया है, एंड दैट इज वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस. अब देखो, इसमें मैं आपको हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन दे देता हूं. Ba plus H2 it gives you Ha plus BOH. ओके, ये है. अब ये सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? दैट इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एज वेल एज बेस. पहले के केस में क्या था? वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, बट अभी यहां पर ऐसा नहीं है. नेचर बेस्ड ऑन व्हाट? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ Ha and BOH. सो इसका मतलब क्या हो गया? आपस में स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए दोनों की. ओके, दोनों वीक तो है, ऑलराइट, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क होगा. ओके, स्लाइट हियर एंड देयर विल बी अ डिफरेंस. और उसके आधार पर फिर तय किया जाता है कि whether it's going to be acidic or basic. Okay, and that is case number 1. अगर Ka is greater than Kb, मतलब dissociation constant of acid is greater than the base, slightly greater, ना, not much greater. जो इससे पहले जो मैंने सॉल्व्स बताए थे आपको, तो they are much greater. अगर strong acid weak base है तो strong acid sulfuric acid का dissociation is much greater as compared to that of what? Copper. Okay, copper hydroxide. तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर है. So solution is acidic. दूसरा केस, अगर Kb is greater than Ka, the solution is basic. अगर Ka is equal to Kb, तो फिर आएगा the solution is neutral. और दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं the special case. याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था there is a special case, okay, where sometimes the solution is neutral. strong acid strong base वाला नहीं दोस्तों. उधर तो मैंने साफ शब्दों में लिख के दिया था कि हाइड्रोलिसिस डज नॉट टेक प्लेस. ओके, लिखा था ना मैंने. यहां पर ये स्पेशल केस है, इन केस ऑफ व्हाट? वीक एसिड एंड अ वीक बेस. ओके, दैट इज अ स्पेशल केस कि इट्स अ न्यूट्रल भी हो सकता है, K इक्वल टू Kb. ओके, एंड तो फिर हम बोलेंगे कि यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ वेरी लेसर एक्सटेंट, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस. अंडरस्टूड दिस? फैंटास्टिक. अब शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर 1. K greater than Kb. ओके, सॉल्ट है मेरे पास NH4F होगा, उसका डिसोसिएशन होगा, it will give me NH4 plus and it is going to give me F minus. इंडिविजुअल रिएक्शन दिखाते हैं हम लोग वाटर के साथ. तो देखिए क्या होगा. NH4 plus water, it is going to give you NH4OH plus H plus. आप सब जगह जहां पर भी H plus लिखा है, आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो दोस्तों, याद रखेगा, या H plus भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. इट्स वन एंड द सेम.
ओके, ओनली थिंग इज वाटर का क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2H2O करना पड़ेगा. इफ यू वांट इट दैट वे आई कैन मेक इट दैट वे आल्सो. सो एनी कंफ्यूजन मत होइएगा प्लीज. ओके, इट इज वन एंड द सेम. F minus plus H2O H plus will go with F, so it will give you HF plus OH minus. ठीक है, this is what we get. क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है. अभी हमें कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड. ये दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन करना है दोस्तों, नॉट विद एनी थर्ड रिएक्शन. ये बात याद रखिएगा. तो आपस में कंपैरिजन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे. दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, नॉट थियोरेटिकल. ओके, तो उसको वेरीफाई किया जाता है. सो दिस इज फास्ट एंड दिस इज स्लो, दोनों के आपस में कंपैरिजन की वजह से. ओके, दिस इज फास्ट एंड दिस इज स्लो. तो इसका मतलब कि हमें ज्यादा मात्रा में, देखो ये फर्स्ट रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ये सेकंड रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोक्साइल आयंस मिलेगा. लेकिन ये रिएक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू दिस, यानी वी विल बी गेटिंग व्हाट, हाइड्रोक्साइल आयंस फास्टर. So H3O minus, I'm very sorry, the hydronium ions faster as compared to OH minus ions, and therefore the solution is acidic. Okay, and therefore the solution is acidic. बोलो, समझ में आई आप लोगों को? Okay, hydronium ions are going to be faster formed as compared to that of OH minus, and therefore the solution is going to be acidic. कौन सा केस कंसीडर किया दोस्तों हम लोग ने? When Ka is greater than what? Kb. When the dissociation constant of the acid is greater than the dissociation constant of the base, so it's very clear that the amount of or the speed at which, forget about the amount, speed also has to be considered. So the speed at which the H plus ions are formed is more as compared to that of OH minus, and therefore the solution is going to be what? Basic in nature? No, the solution is acidic in nature. याद रखिएगा दोस्तों. Okay, next one is we go into Ka is less than what? Kb. यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, that is NH4Cn, that is अमोनियम साइनाइड. अमोनियम साइनाइड का जब हम डिसोसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा NH4 प्लस एंड Cn माइनस. ओके, अब ये इनका इंडिविजुअल रिएक्शंस देखेंगे हम लोग. NH4 प्लस H2O, we take 2H2O and it is going to give you NH4OH and hydronium ion H3O plus Cn minus plus H2O. तो वो क्या देगा, इसका H plus Cn minus के साथ जाएगा और वो देगा HCN plus OH minus. ओके, ये ऐसा हो जाएगा. ओके, नाउ वंस अगेन कंपैरिजन करो, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन किया ऐसे यहाँ पर भी कंपैरिजन करो, और कंपैरिजन करने के बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पर साबित किया गया है कि ये वाला जो है वो फास्ट है और ये वाला जो रिएक्शन है वो स्लो है. ओके, यानी हमें हाइड्रोक्साइल आयंस फटाफट मिलेगा एज कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रोनियम आयंस. ऑलराइट, एंड देयरफॉर वी से the OH minus ions are going to be what? Faster as compared to what? Hydronium ions. Okay, and therefore the solution is going to be what? Basic in nature. Okay, and therefore the solution is basic. यानी एक बार आपको Ka greater than Kb पता चल गया तो ये वाला फिर उसी हिसाब से घुमाने का है. मैं हर बार आपको ये बोल रहा हूँ. ओके, यानी आपको ये सब केसेस बड़े बड़े लग रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, लेकिन ऐसा नहीं है. एक बार आपको कंसेप्ट सही तरीके से दिमाग में बैठ गया, देन इट इज वेरी इजी. ओके, तो अगर Ka ग्रेटर देन Kb है, यानी एसिडिटी इज मोर देन बेसिसिटी हो गया, सिंपल है, तो एसिडिटी ही होगा ना. The solution has to be acidic. अगर Ka and Kb है तो that means what you are going to say is that yes, basicity ज्यादा है, तो therefore the solution has to be what? Basic. अभी हम लोग तीसरे केस पे आ रहे हैं, and that means Ka is equal to what? Kb. Okay, and that is nothing but example मैं आपको देना चाहूँगा, that is CH3CONH4. Okay, now it is made up of CH3CO minus. उसका रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ दिखाया
तो नथिंग बट इट इज गोइंग टू गिव मी CH3 COOH प्लस OH माइनस। NH4 प्लस का रिएक्शन वाटर के साथ, ये तो मैंने पहले भी 2 बार दिखा चुका हूं, तो इट विल गिव मी NH4 प्लस अ हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब दिस इज रिएक्शन 1 and this is reaction 2. So the rate of reaction 1 is equal to the rate of reaction 2, and therefore we say the amount of OH minus ions will be equal to the amount of a hydronium ion, and therefore we say that the solution is going to be what? Neutral. और ये है दोस्तों that specific case के hydrolysis can take place at a particular instant of time, not always. Okay, तो ये था about the third category, that is K is equal to Kb. दोनों का concentration is almost same because दोनों का rate is equal, यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता this is slow and this is fast. Both of them are equal, and therefore we say that the solution is going to be what? Neutral. Now, does hydrolysis take place over here? Only to a very very limited extent. Okay, याद रखिएगा, it is what? Only to a limited extent, because both of them are weak. तो at one instant of time, at one particular instant of time, याद रखिएगा, ये जो मैंने बोला है that is over an average. सारा टाइम कंसीडर करने के बाद मुझे ये मिला है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ऐसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि या तो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस, या तो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। और इस तरीके से एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन होने की संभावना है, और इसीलिए हाइड्रोलिसिस की संभावना है टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, though the solution is neutral. और ये इसका हाइड्रोलिसिस का स्पेशल केस बन जाता है, और इसलिए वो डेफिनेशन अगर आप याद करो, इफ यू कैन रिकॉल, ओके, मैंने आपको वही बताया था कि समटाइम्स इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल एंड दैट कैन बी स्टिल कंसिडर्ड एज व्हाट? a hydrolysis reaction only in case of what? This category. फिर आप लोग बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं? लेकिन स्ट्रॉन्ग में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप अगर आप पूछोगे मुझे सर वहां पर आप इंस्टेंटेनियस की बात क्यों नहीं की, इस बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है। Okay, and therefore both of them are giving H plus ions as well as OH minus in equal amount and at the same rate, because it's a complete dissociation. यहाँ पे इन लोगों का complete dissociation नहीं है because they are weak. Okay, अधूरा dissociation, और जब अधूरा dissociation है तो कम ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन जब पूरा का पूरा dissociation, it's almost 100% dissociation, तो कम ज्यादा का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। आई बात समझ में? Less than 100 can have different values, but 100 has always one value. इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, strong acid and strong base, okay, का हाइड्रोलिसिस कभी भी संभव नहीं है। यहाँ पर in one particular case there is possibility, और ये 2 केस में तो है, in spite of fact हम लोग ने ये weak acid weak base कंसीडर किया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर Ka ज्यादा है Kb से, यहाँ पर कहीं पर Kb ज्यादा है Ka से, तो यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक स्पेशल केस है। और आई एम वेरी श्योर ना दोस्तों आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।